Hello, students, and welcome. This is Jyoti Rajput, and today's topic is structure of animal cell. So, in this diagram, you can say this is an animal cell where it consists of the nucleus and number of organelles are present. So, animal cell it is an example of eukaryotic cell. And whenever we talk about a cell, it is enclosed by a plasma membrane. So here in this diagram, you can see how this cell it is surrounded by a membrane that is called as plasma membrane. You can say cell membrane also, you can say plasma lemma also. ये तीनों की तीनों नाम इसी membrane के हैं. And inside this membrane, you can see the nucleus is present. And the nucleus it is membrane bound, double membrane it is present in this nuclear membrane. And in the cytoplasm you can see there are number of organelles are present, जैसे कि here you can see the rough endoplasmic reticulum, there are mitochondria, centriole, there are Golgi apparatus, lysosome, vacuoles. All these are the organelles which are present inside the cell, that is in the cytoplasm. So whenever we talk about the eukaryotic cell, here uh, in eukaryotic cells में जो है सिर्फ और सिर्फ animal cell एक ऐसा cell है where there is absence of cell wall. And in the eukaryotic cells like the plants, the fungi, they do have a cell wall. Further, here the lack of rigid cell wall allows animals to develop a greater diversity. Animals में cell wall ना होने के वजह से जो है there is a great diversity seen in animals. There is great diversity in the cell types, in the tissue, and also in the organs. So there are more specialized cells are formed in the animal cells like the nerves, muscles, tissues, जो कि इसकी के वजह से जो है the animals they are more evolved and the animals they have the mobility. Here, the animal cells are composed of some parts, like the cell membrane. Cell membrane को ही हमने plasma membrane भी बोला है, plasma lemma भी बोला है. So it is a membrane. You can say that it is going to act like a barrier which separates the cell from the external environment. So ये जो है ये external environment हो गया. Okay, this is the external environment. Okay, so ये cell membrane ही होगी जो कि cell को जो है separate करके रखेगी from the external environment. So you can see कि cell membrane it is going to act like a barrier. और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो काफी थिन है, इलास्टिक है और सेमी परमेबल है. सेमी परमेबल का मतलब ओनली सिलेक्टिव थिंग्स दे आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द सेल, नॉट ऑल थिंग्स आर एबल टू एंटर इनसाइड अ सेल. तो कुछ फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के, लाइक द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, एक प्रॉपर शेप देता है सेल को. एंड हियर this membrane it delimits the protoplasm from the exterior of the cell and controls the entry and exit of various substances. सो फर्दर फंक्शन ये आता है कि द प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो न्यूक्लियस है, दे ऑल टुगेदर फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर ही क्या बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म. सो सेल मेम्ब्रेन जो है इसी प्रोटोप्लाज्म को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है. एंड दिस सेल मेम्ब्रेन ही है जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स जो है दे विल एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन. So it will allow the entry and it will allow the exit of various substances across this. So this is how the structure of the cell membrane, you can say plasma membrane, look like. Here there is presence of the lipid, here there is presence of the lipid chain, lipid layer you can see. So there is two layers of lipid, एक ये layer है lipid की और ये दूसरी layer है lipid की. This circular is called as head and this is called as tail region. So there are two lipids layers, we call them bilayer, bilipid layer. And here in this here in the middle of it there is presence of the protein. So there are various types of proteins are present. Here you can see the various types of protein, like here this is the peripheral protein, this is the integral protein are present.
And on the protein there are presence of carbohydrates also. And in this plasma membrane you can see there is presence of cholesterol, there is presence of glycolipid. So here this is how the structure of the plasma membrane look like. It is also called as trilaminar membrane. क्यों? because यहाँ पर दो लिपिड की लेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर बीच बीच में जो है प्रोटीन भी प्रेजेंट है, which on the protein there is presence of the carbohydrate chain. So plasma membrane के कुछ functions हैं, that is osmosis, diffusion, active transport, endocytosis and exocytosis. So first we'll talk about the osmosis. Osmosis का मतलब क्या है? The movement of water molecules from higher concentration to the lower concentration. So इसको explain करने के लिए जो है we will take an example. So हमने यहाँ पर एक example लिया है जहाँ पर here we have taken द रेजिन्स, जो किशमिश होते हैं, दिस इज द रेजिन्स। और हमने यहाँ पर लिया है एक बोल में वाटर। वाटर में ऑब्वियसली द वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी हाई in the water. The H2O molecules are going to be H2O molecules in the water, they're going to be high. और raisins में water molecules जो हैं, in the raisins the water molecules they are going to be low. In the raisins the water molecules they are going to be low. So होगा क्या, जब भी हम raisins को water में डालेंगे तो किशमिश क्या हो जाएंगे, raisins they are going to swell. Why it has swell? Because the movement of water it is going to be from the higher concentration towards the lower concentration, इसीलिए जो है raisins क्या हो जाएंगे, they are going to swell. Okay, so that is how this is an example of the osmosis. अब बात करते हैं diffusion की. Diffusion का मतलब है movement of molecules from higher concentration towards the lower concentration. जैसे कि यहाँ पर here we have taken an example. एक हमने बीकर लिया जिसमें पानी डाला है और उसमें जो है इंक डाल दी गई है. अब इंक जो है it is going to move from higher concentration towards the lower concentration. So this is an example of diffusion. या तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक रूम में जो है एक परफ्यूम स्प्रे कर दें, तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं they will move from higher concentration towards the place where there is lower concentration. सो इस तरीके से पूरे रूम में जो है परफ्यूम की स्मेल क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना. सो हियर दिस इज हाउ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इज. सो डिफ्यूजन जो है देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ये मूवमेंट ऑफ आयंस है या तो फिर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से होंगे, फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. अब आता है ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. व्हेनेवर द मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देन दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. या तो हम एक और जीआईएफ देख सकते हैं वेयर यू कैन सी देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. या तो ट्रांसपोर्टेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, बट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इफ देयर इज अ यूज ऑफ एनर्जी, देन दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. अब हम बात करेंगे एंडोसाइटोसिस. अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल सेल्स के बाहर हैं और वो molecules if they enter inside a cell, so here there is a formation of a vesicle and then it is able to enter inside the cell. So इसी process को हम बोलेंगे that is endocytosis. So this is how molecules which are present outside the cell will enter inside the cell. एक और GIF देख लेते हैं where the molecules which are present outside, now through the plasma membrane only it has been entered inside, but the molecules are present inside the vesicle form. और ये जो vesicle जो है कहाँ से बनी है, plasma membrane से. So this is how the molecules they enter outside from the environment inside to the cell. How? By the process of the endocytosis. सेम एक्सोसाइटोसिस भी देखने मिलेगा. अगर सपोज कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ओके, सो हियर द सेल्स द वेसिकल्स, इनसाइड द वेसिकल्स द टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे. एंड हियर इन दिस प्रोसेस यू कैन सी हाउ द टॉक्सिक और वेस्ट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड वेसिकल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द सेल. एक और GIF है जहां पर you can see that how the toxic molecules which were present inside the cell in the vesicles it is thrown out of the cell. How? Through the plasma membrane only. So it is also one of the function of the plasma membrane, that is exocytosis.
सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कॉन्स्टेंटली फॉर्म होती रहती है, कॉन्स्टेंटली ब्रेक होती रहती है, ओके, विच इज ऑलवेज सीन इन द लिविंग सेल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म. अब हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में. सो हियर न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये जो हमको नजर आ रहा है दिस इज द न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी हमें चीजें नजर आती है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल, दैट इज द साइटोसोल. फर्दर साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या नजर आएगा, साइटोसोल, जिसमें बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है. So cytosol, it is a jelly-like mixture where there are number of organelles are present. So you can see what exactly is cytoplasm. Cytosol. Cytosol means the fluid plus organelles. Organelles are like the rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, you can see the mitochondria, the lysosome, all these are the organelles. So the fluid which is present in the cytoplasm and the organelles, so all together they form the cytoplasm, they form the cytoplasm. Next, here the cytoplasm, it is distinguished into the cytoplasmic matrix and cytoplasmic structures. What is cytoplasmic matrix? It is an area which lies between the cell membrane and nuclear membrane. So here in this diagram, if we see, this is the nuclear membrane, this is the nuclear membrane. Sorry, this is the cell membrane and this is the nuclear membrane, this is the nuclear membrane. So यहाँ पर बीच में जो भी present होगा, this is called as cytoplasmic matrix. So this cytoplasmic matrix, it is amorphous, translucent, homogeneous liquid. We also call them, this is the hyaloplasm. So here it is also divided into two. यहाँ पर जो cytoplasmic matrix होगा, this is called as ectoplasm, और जो nucleus की तरफ होगा, this is going to be called as the endoplasm. So here this is called as endoplasm, और जो बाहरी की तरफ होगा, this is going to be called as the ectoplasm, और जो अंदरी की तरफ होगा, this is going to be called as the endoplasm. Okay, so this is how the cytoplasmic matrix it is divided. जो plasma membrane की तरफ है we call them ectoplasm, और जो अंदर present है this is called as you can say endoplasm. So here this is how the ecto and endoplasm it is present in the cytoplasmic matrix. Next is the cytoplasmic structures. Cytoplasmic structures में जो है आपको नजर आएंगे कुछ substances like the organic and inorganic substances, कुछ stored granules भी, like कुछ कुछ granules होते हैं which stores the glycogen, even some secretory substances. और चीजें कौन कौन सी present है cytoplasmic matrix में, that is the endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi, then lysosomes, mitochondria, centriole, some inclusion bodies, ऐसी bodies जो कि store करती हैं oil को या तो yolk को या तो pigments को कुछ या तो फिर glycogen को. Next, we are going to talk about the nucleus. Nucleus, it is the place where it is usually present in the center region of the cell. So जब भी हम draw करते हैं nucleus को, okay, so suppose ये cell है और यहाँ पर हम nucleus draw करते हैं, मतलब usually हम cell के center में ही nucleus को draw करते हैं. ओके, और स्फेरिकल शेप है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस शेप इट इज स्फेरिकल, और न्यूक्लियस ही है जो कि सेल को जो है कंट्रोल करता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. फर्दर व्हेन वी सी द न्यूक्लियस यू कैन सी द दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन. सो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस होगा जो कि आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आएगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन नजर आएगी, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन नजर आएगी. तो सेल में तीन ही इस तरीके के ऑर्गेनल्स हैं जिसमें तीन तीन सॉरी जिसमें दो जो है डबल मेम्ब्रेन नजर आएगी. So here in this you can see the nuclear membrane, it is double layer और ये porous होती है. Okay, so this is the nuclear envelope. So इस तरीके से जो है इसके अंदर जो आपको नजर आएगा the nucleoplasm. So there is the place where the nucleoplasm it is present. Here is the place where there is the nucleoplasm it is present. सो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है हमेशा आपको न्यूक्लियस के अंदर ही नजर आएगा, और जो है हियर यू कैन सी इन द न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस, ये जो है दिस इज द
here the dense region is called as nucleolus, और उसके सराउंडिंग में जो है you can see the DNA, the genetic material which is in the chromatin form it is present, और इस तरीके से जो न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियर एनवेलप में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, यू कैन सी द न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट। और ये जो दूसरा डायग्राम है, इट इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज हाउ एग्जैक्टली द न्यूक्लियस लुक्स लाइक। ये है न्यूक्लियोलस, उसके सराउंडिंग में जो है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन फॉर्म में, और ये डबल लेयर तो है ही न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर पोर इन द सराउंडिंग। न्यूक्लियर पोर इट इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर पोर हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस। So the nucleus, it contains the genetic material, the DNA, which is in chromatin form. Nucleus के पास जो है एक dense body present है, the nucleolus. This is the dense body structure which is spherical in shape, और एकदम nucleus के center में present होगा. So ये करता क्या है nucleolus? It is the one which has the ribosomal protein, ribosomal RNA present है, और मेन फंक्शन न्यूक्लियोलस का ये है, जब उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ही न्यूक्लियोलस, और फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम जो है वो भी आपको न्यूक्लियोलस में नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दे आर काइंड ऑफ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर जो पूरे साइटोसोल में फैले हुए होंगे, प्रेजेंट होंगे, और काफी लार्ज ऑर्गेनल्स है ये। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दे डू रिक्वायर ऑक्सीजन, तभी एटीपी सिंथेसिस होगा। ओके इसीलिए जो है दे आर डूइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसी के वजह से दे आर एबल टू प्रोड्यूस द एटीपी एंड दे आर एबल टू ट्रांसफर द एटीपी। इसीलिए हम उनको पावर हाउस ऑफ सेल बुलाते हैं। So here this is how the mitochondria structure look like. So mitochondria जो है it is present in the cytoplasm of the cell. So suppose ये mitochondria है तो यहाँ पर जो है cytoplasm present होगा, उसके बाहर जो है cytoplasm present है। So here you can see the two membrane layer mitochondria, one layer ये हो गई और एक दूसरी layer हो गई। जो outer layer वो काफी smooth layer है, लेकिन जो inner layer है you can see there are invaginations are present, इसी को ही हम बोलते हैं क्रिस्टीज are present। और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर जो है यू कैन सी देयर आर सम स्ट्रक्चर्स, यू कैन से F0 F1 एटीपीज जो हैं which are able to do the ATP, that is energy formation is taking place। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी होता है। ओके और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स, और यहाँ पर जो राइबोसोम्स होंगे दे आर गोइंग टू बी ऑफ 70s टाइप। यहाँ पर जो होंगे 70s टाइप होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होंगे वो होंगे 80s टाइप। ऐसा इसीलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऐसा कहा जाता है इट इज अ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इवोल्यूशन की जब हम पढ़ते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत पहले जो है एक बैक्टीरिया की तरह ही सरवाइव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक बैक्टीरिया की तरह इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर रहा था, इट वाज एबल टू डू एनर्जी प्रोडक्शन। तो पहले कभी कोई एक यूकैरियोटिक सेल ने जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, और तभी से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो यू कैन सी राइबोसोम है वो तो है बैक्टीरिया के जैसे प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जब हम साइटोप्लाज्म देखते हैं द राइबोसोम दे आर ऑफ द 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है बैक्टीरिया की तरह 70s टाइप का राइबोसोम है, और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो है 80s टाइप का राइबोसोम है। सो दो तरीके के राइबोसोम्स हैं, 80s टाइप के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में है, और 70s टाइप का राइबोसोम जो बैक्टीरिया सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है वो है बैक्टीरिया टाइप के ओरिजिन का, दैट इज प्रोकैरियोट टाइप के जैसा। Okay, so this is how here the bacteria इस तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है they have the ribosome of the 70s type which is of like that of the prokaryotic bacterial origin. So this is how the beautiful mitochondria looks like, and it is the one which is called as powerhouse of cell, and it does the formation of ATP.
फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट इन डिटेल, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। एक डीएनए नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सारे डीएनएज मिलेंगे जो कि सर्कुलर डीएनए है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो बैक्टीरिया है उनके पास भी सर्कुलर डीएनए होता है, और वैसा ही इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी बैक्टीरिया के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स शो करेगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर आल्सो हैविंग अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन देम। Okay, so here in this you can see there are number of DNAs are present. So ये एक DNA हो गया, ये भी DNA है, ये भी DNA है। So number of DNA are present, circular DNA are present inside the mitochondrial matrix. सो किसी किसी सेल्स में जो है ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी किसी सेल्स में जो है कम माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऐसा इसलिए है, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी। जैसे कि मसल सेल्स हैं, वो कितना ज्यादा काम करते हैं तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो मसल सेल्स में ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है यू कैन सी द आउटर मेम्ब्रेन, इट इज अ स्मूथ मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज काइंड ऑफ अ फोल्डेड, इनवर्ड्सली फोल्डेड है। सो वी कॉल देम दिस इज अ क्रिस्टी। हम इसको क्या बुलाते हैं, दिस इनवर्डली फोल्डेड, इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यू कैन से ये आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की एक बाउंड्री के जैसे काम करेगी। ओके, सो स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन इट सर्व एज अ बाउंड्री बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग एनवायरनमेंट होगा, और साइटोप्लाज्म में जो है वो कैसा एनवायरनमेंट होगा, वो अलग एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा। ओके, सो इस तरीके से हियर द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। और माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में जो है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी देयर आर हियर इट इज फोल्डेड, इनवर्ड्सली फोल्डेड। सी ज्यादा फोल्डेड होने की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एटीपीज एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ज्यादा एटीपीज एंजाइम्स होंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज हाउ द एटीपी सिंथेसिस इट इज डन बाय द दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम्स भी हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद डीएनए होने के कारण ही दे आर एबल टू डू द डिविजन। सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ये सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है, और अब उनमें जो है आपको नजर आएगा हाउ द डिवीजन इट इज टेकिंग प्लेस। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होने के वजह से इट इज एबल टू डू द रेप्लिकेशन आल्सो। ओके, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बुलाते हैं। सी माइटोकॉन्ड्रिया जो है आधे प्रोटीन्स तो खुद बनाता है, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, तो आधे प्रोटीन तो खुद बनाता है सर्वाइवल के लिए। लेकिन आधे प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियस से लेता है। तो इस तरीके से जो है आधे न्यूक्लियस से प्रोटीन लेगा और आधे प्रोटीन्स खुद बनाएगा, एंड दिस इज हाउ दिस ऑर्गेनल इट सर्वाइव। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बुलाते हैं। सेमी मतलब आधा, सेमी मींस आधा, आधा ये खुद के ऊपर खुद के प्रोटीन्स बनाकर अपनी सर्वाइवल कर लेता है। अब हम बात करने वाले हैं एक और ऑर्गेनल की, दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ऐसे ऑर्गेनल है विच इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये एक पॉलीपेप्टाइड की पूरी चेन बनी हुई है, और ये जो है एक इसमें कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखा जाए इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो है ये राइबोसोम्स, हम जब भी सेल बनाते हैं, सपोज दिस इज सेल, ओके, तो एक तरीके से एक डॉट के जैसे हम डायग्राम बना देते हैं कि ये राइबोसोम्स हैं। ओके, सो हियर दिस इज हाउ द राइबोसोम्स दे लुक लाइक। लेकिन जब भी राइबोसोम का फंक्शन देखने मिलता है तो राइबोसोम्स जो हैं लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ये जो है साथ में आ जाते हैं। ओके, so this is the larger subunit of the ribosome and this is the smaller subunit of the ribosome। ये जो है साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस का काम स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन सी ये स्मॉलर सब यूनिट आ गया राइबोसोम का, फिर लार्जर सब यूनिट आ जाएगा राइबोसोम का, और फिर एमआरएनए के कोड को जो है ये रीड करेंगे, और रीड करते टाइम जो है टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएंगे, और इस तरीके की जो है अमाइनो एसिड की चेन बनते हुए नजर आएगी। इट मीन्स द चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। और इस तरीके से राइबोसोम्स जो हैं they are involved in the protein synthesis. So this is how the protein it is formed because of the help of the ribosome. So protein synthesis का काम करते हैं राइबोसोम, this is the function। और राइबोसोम्स जो हैं they are very common present in organelles। राइबोसोम आपको क्लोरोप्लास्ट में नजर आएंगे, राइबोसोम जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आएंगे, राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नजर आएंगे, राइबोसोम जो है आपको साइटोप्लाज्म में भी नजर आएंगे।
So there are free ribosomes present in the cytoplasm, but there are ribosomes which are present on the endoplasmic reticulum, which we call rough endoplasmic reticulum. So ribosomes जो है वो आपको दो साइज के नजर आएंगे, 70s और 80s. 70s टाइप के ribosomes जो है they are always and always present inside the mitochondria. And 70s टाइप का राइबोसोम जो है आपको क्लोरोप्लास्ट में भी नजर आएगा इन द प्लांट सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी एक तरीके का बैक्टीरियल ओरिजिन का ही है, वो भी एक ऐसा ही इंडिपेंडेंटली रहता था, सरवाइव करता था, लेकिन उसको भी यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया और वो जो ब्रांच जो है वो प्लांट किंगडम की तरफ चली गई। और जिस यूकैरियोटिक सेल ने सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ किया, माइटोकॉन्ड्रिया का एंडोसाइटोसिस किया, और वो जो है वो एनिमल किंगडम की तरफ चली गई। सो दिस इज हाउ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ ऑफ देम आर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल ओरिजिन, बैक्टीरियल सेल ओरिजिन। सो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के ही अंदर जो राइबोसोम है वो 70s टाइप का राइबोसोम होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें हमेशा वो साइटोप्लाज्म में आपको 80s टाइप का ही राइबोसोम नजर आएगा। इवन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी आपको जो है 80s टाइप का ही राइबोसोम नजर आएगा। Now, the next we are going to talk about the endoplasmic reticulum. You can see here it is a system of membranous tubules and sac-like structure. So here in this diagram you are able to see किस तरीके से यहाँ पर tubule shapes are present, the tubular shapes are present, और यहीं से ही कुछ sac like structures भी arise होते हैं, vesicle shape like structures भी arise होते हैं from the endoplasmic reticulum. So ये काम क्या करते हैं? They are the one which act in the internal transport system which allows the molecules to move from one part of the cell towards the another part of the cell. जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वेसिकल के फॉर्म में ये मूव होकर गोल्जी से क्या कर रहे हैं, they are going to get into the Golgi apparatus. So the quantity of endoplasmic reticulum inside a cell it fluctuates depend on the cell activity. अब यहाँ पर भी सेल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या कम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दे आर ऑलवेज हैविंग द राइबोसोम, वो भी 80s टाइप का राइबोसोम होगा विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. और यहाँ पर हियर यू कैन सी कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप. सो जो भी एमआरएनए फॉर्म होता है इन द न्यूक्लियस वो न्यूक्लियर एनवलप से कहाँ आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा. एंड दिस इज हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो डन इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है you can see यहाँ पर जो है this is a smooth endoplasmic reticulum where it is a one which are having the storage of the protein, it is done here also. Storage of the lipid भी smooth endoplasmic reticulum में होगा, storage of the steroid भी smooth endoplasmic reticulum में होगा, और इसी के ही पास में जो है आपको नजर आएगा गोल्जी. ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही पास में एक आपको थोड़ा डिस्टेंस पे एक और ऑर्गेनेल नजर आएगा, दैट इज द गोल्जी. तो यहाँ पर here in this diagram you can see कि how the structure it is present. ये तो हो गया, this is a nuclear membrane. Okay, I'll take another color. Okay, तो यहाँ पर जो है here this is a nuclear membrane, ये जो present है this is a nuclear membrane है, और उसी के ही association में देखिए here there is presence of the rough endoplasmic reticulum it is present, और rough endoplasmic reticulum के ही पास में आपको smooth endoplasmic reticulum मिलेगा. smooth endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum जो है they are going to secrete the secretion in the form of the vesicles, So here in this diagram you can see how the vesicles they are releasing out. So ये vesicles ये release out हो रहे हैं from the smooth endoplasmic reticulum and they are going to join to the Golgi. ये जो आपको structure नजर आ रहा है this is called as Golgi. So vesicles जो हैं ये rough endoplasmic reticulum से भी arise होते हैं, और vesicles जो हैं ये smooth endoplasmic reticulum से भी arise होते हैं, जो कि join हो जाएंगे किसको, they are going to join into the Golgi apparatus. गोल्जी apparatus में ये वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि गोल्जी जो है ये करते हैं मॉडिफिकेशन. ये प्रोटीन जो वेसिकल्स में है उनका मॉडिफिकेशन करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट जो वेसिकल्स में उनका मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी स्टेरॉइड्स आ रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये उनका भी मॉडिफिकेशन करते हैं. तो ये जो है मॉडिफिकेशंस लेकर आते हैं.
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कभी भी आपको राइबोसोम्स अटैच होते हुए ही नजर आएंगे। और एक और फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये स्टेरॉइड और लिपिड स्टोरेज और सिंथेसिस तो करते ही हैं, दे आल्सो ड्यू द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल इन मसल सेल्स। और एक और काम करते हैं, दे ब्रेक डाउन द टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीवर सेल्स। सो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट मटेरियल करते हैं थ्रू आउट द सेल, बोथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम बात करने वाले हैं एक और ऑर्गेनल का, दैट इज कॉल्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और यू कैन से द गोल्जी apparatus. Here also in this diagram, here you can see how the structure it is present. Here ये जो stacks के फॉर्म में structures नजर आ रहे हैं, these are called as Christies. These are called as Christies. So Christine, okay, और ये जो है these are the vesicles, these are the vesicles form. ओके, सो यहाँ पर जो है दिस इज हाउ द गोल्जी लुक्स लाइक। सो ये जो है गैदर करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स को और कंबाइन करके ये उनको मॉलिक्यूल्स को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन सिक्रीट करता है, वो फ्यूज हो जाता है गोल्जी से और गोल्जी क्या करेगा, उसका मॉडिफिकेशन करेगा और दो कॉम्प्लेक्स बना देगा। सो यू कैन सी इन दिस सेकंड जीआईएफ कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है वो गोल्जी के थ्रू गुजर कर मॉडिफाई हो जाएंगे अपने आप, और गोल्जी के थ्रू निकलने के बाद भी ये मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट या मॉडिफाइड प्रोटीन जो है गोल्जी के थ्रू रिलीज होके वेसिकल्स के फॉर्म में ये बाहर आ जाएंगे गोल्जी के। ओके, सो गोल्जी टेक दोज बिग मॉलिक्यूल्स और उनका पैकेजिंग करेगा वेसिकल्स के फॉर्म में, स्टोरेज भी करेगा और सेंड कर देगा आउट ऑफ द सेल। गोल्जी का एक और फंक्शन है, ये तो मॉडिफाई करेंगे ही किसी भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को, और उसके साथ साथ दे आल्सो गिव राइज टू द लाइसोसोम। ओके, सो मतलब लाइसोसोम्स जो है ये कहाँ से आते हैं, गोल्जी से ही आएंगे। और इवन जो हमने आपने स्पर्म देखा होगा, स्पर्म का जो कैप होता है दैट इज एक्रोसोम। सो ये स्पर्म का एक्रोसोम इट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द गोल्जी apparatus। सो इस तरीके से वो जो एग जो होगा उसकी मेम्ब्रेन को जो डिसॉल्व करेंगे और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। सो गोल्जी जो है ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं शुगर को, ओके, जो भी सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं के फॉर्म में उसको सेंड कर देगा आउट ऑफ द सेल। सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी द गोल्जी, ये जो है ये क्या है, ये गोल्जी है और ये देखिए वेसिकल्स के फॉर्म में ये क्या कर रहा है, सब्सटेंसेस को सेंड कर रहा है। ओके, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी। और गोल्जी का हमने एक और फंक्शन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन तो करेगा ही मॉलिक्यूल्स का, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। ओके, इट आल्सो डज द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम एंड इट आल्सो डज द फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। सो वेसिकल्स जो हैं वो क्रिएट होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वेसिकल्स जो हैं दे आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द गोल्जी apparatus, और पिंच ऑफ करके वो जो है मेम्ब्रेन के बाहर चले जाएंगे और सेल के बाहर चले जाएंगे। सो गोल्जी जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हम उसको बोलते हैं सिस्टर्नी, सॉरी नॉट क्रिस्टी, सॉरी दैट इज अ सिस्टर्नी, दैट इज अ सिस्टर्नी। सो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और एक्सपोर्टेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सेल के बाहर। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम्स दे आर वेरी स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनल जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। सो ये लाइसोसोम जो एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसमें जो है काफी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते क्या है, जो भी डेड सेल्स हैं ये उसको एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेल के अंदर अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो उसको एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक तरीके का साफ सफाई का काम करेंगे ये। ओके, कौन, लाइसोसोम्स। सो हमने देखा कि लाइसोसोम्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी, ये गोल्जी है, और ये गोल्जी जो है पिंच ऑफ हो रहा है वेसिकल, और ये गोल्जी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ। और लाइसोसोम जो है कोई अगर फूड है उसको डाइजेस्ट करेगा, अगर कोई पैथोजन है उसको डाइजेस्ट करेगा, या तो कोई डेड सेल है तो उसको भी डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये लाइसोसोम का काम है। ये इसलिए क्यों कर पाता है, बिकॉज उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है और इसका पीएच भी लो होता है। सो डाइजेस्ट कर देता है फूड को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को। सो कैसे खाकर, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। और ये कहाँ से बनते हैं, लाइसोसोम गोल्जी apparatus से बनते हैं। सो लाइसोसोम जो है आपको मिलेंगे प्लांट सेल में, प्रोटिस्टा सेल्स में। प्रोटिस्टा मीन्स द पेरिमेशियम यूग्लिना अमीबा। आपको लाइसोसोम्स फंजाई में भी मिलेंगे, और कुछ कभी कभी जो है रेयर प्लांट्स में भी आपको लाइसोसोम्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की।
जैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट करने वाला हमारा स्केलेटन है, वैसे ही सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करने के लिए, एक जगह पर रखने के लिए साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। सो इस तरीके से सेल का शेप और साइज जो है मेंटेन रहेगा। ओके, सो ये मेंटेन करता है सेल के शेप को और सेल के मूवमेंट को भी मेंटेन करेगा। तो हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन एक तरीके का इंटरनल फ्रेमवर्क है सेल के अंदर। सो साइटोस्केलेटन जो है देयर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला आता है माइक्रोफिलामेंट, सेकंड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो माइक्रोफिलामेंट जो है ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, और इस तरीके से जो है सेल को मोबिलिटी मिलेगी। दूसरा आता है दैट इज अ माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो है ये हॉलो होते हैं और मेड अप ऑफ होते हैं दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तीसरा जो है दैट इज अ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, इसका साइज जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल जैसा है ना माइक्रोफिलामेंट जैसा है, एकदम इंटरमीडिएट है। और इस तरीके से जो है ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज इन द साइटोस्केलेटन। अब हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स की। दिस इज अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की जब हम लोकेशन देखते हैं, सो जब भी हम ये सपोज ये सेल है, ओके, यहाँ पर हमने बना लिया दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियोलस है, और बाकी सराउंडिंग में ऑर्गेनल्स होंगे, गोल्जी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। न्यूक्लियस के पास में ही सेंट्रियोल को लोकेशन नजर आएगा विच इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। Okay, two cylindrical structures are present, that is the centriole. Okay, ये काफी छोटे होते हैं और ये microtubules के बने होते हैं, और specific way of arrangement होगा that is you're always towards the right angle to each other. So दो दो bundles हैं centriole में, और इनका जो arrangement है it contains 9 tubes, और इनका जो है एक तरीके का proper arrangement present है। Okay, so you can see there are 9 tubes are present, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्यूब्स आर प्रेजेंट, और इनका अरेंजमेंट देखिए किस तरीके से एकदम स्पेसिफिक तरीके से इनका अरेंजमेंट देखने मिल रहा है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है arrangement. Each bundle has 9 tubules present in tubes present in it. Okay, so इनका काम क्या है? जब भी सेल डिवाइड करता है, जब भी सेल डिवाइड करता है तो ये सेंट्रियोल भी डबल हो जाते हैं, और जैसे ही सेंट्रियोल भी डबल हो जाएंगे, जैसे ही सेंट्रियोल भी डबल हो जाएंगे, हियर यू कैन सी दे विल रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि हाउ द सेंट्रियोल डबल तो हुए हैं और ये ऑपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे जो डीएनए क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आपको बनते हुए नजर आएंगे। और दूसरी बात, सेंट्रियोल से जो है स्पिंडल फाइबर्स अराइज होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बहुत जरूरी है, सेंट्रियोल से अराइज होना चाहिए जब सेल डिवाइड करेगी, क्योंकि ये जो सेंट्रियोल है जहां से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, ओके, सो स्पिंडल फाइबर्स जो है ये क्रोमोसोम को अटैच होके प्रॉपर सेपरेशन करते हैं, प्रॉपर डिवीजन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज क्रोमोसोम का। और इस तरीके से जब भी एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए। सो इक्वल क्वांटिटी हो दोनों डॉटर सेल्स में, तो ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेंट्रियोल से अराइज होते हैं। सो इस तरीके से सेंट्रियोल दे विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगे जो कि अटैच होंगे सेंट्रियोल से और क्रोमोसोम से, और इस तरीके से वो शॉर्टन होने लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से क्रोमोसोम्स दे विल बी पुल्ड अपार्ट एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू सेपरेटेड। अब हम बात करेंगे सीलिया की और फ्लैजिला की। सीलिया एंड फ्लैजिला ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए, सेल के मूवमेंट के लिए। सीलिया दे आर शॉर्ट एंड न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर द सीलिया, लेकिन जो फ्लैजिला है ये बहुत कम नंबर में होंगे, लॉन्गर साइज में होंगे, एंड द मूवमेंट इज काइंड ऑफ whip like movement is seen in the flagella. सो सीलिया और फ्लैजिला जो है ये यूकैरियोटिक सेल में आपको 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलेगा। व्हाट इज 9+2 अरेंजमेंट? सो यहाँ पर जो है आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, here इस तरीके से जो है 9+2, 2 का मतलब है यहाँ पर सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके, और सराउंडिंग में जो है 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो भी डबलेट फॉर्म में जो है आपको सराउंडिंग में नजर आएंगे, और दो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर इन द सेंटर, इसीलिए 9+2 अरेंजमेंट नजर आएगा आपको सीलिया और फ्लैजिला के बेसल रीजन में। सो बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला को हम बेसल ग्रैन्यूल भी बुलाते हैं, काइनेटोसोम भी बुलाते हैं, जो कि एक स्फेरिकल बॉडी है।
ओके, सो नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल की। हमने देखा प्लांट सेल में तो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, करीबन सेल के स्पेस को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, 30% टू 80% जो है सेल का स्पेस वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन जब हम एनिमल सेल पढ़ते हैं, इन द एनिमल सेल्स द वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। जो वैक्यूल्स होते हैं इन द एनिमल सेल दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, कुछ ही होंगे लेकिन बहुत ही छोटे होंगे साइज में इन द यूकैरियोटिक सेल, दैट इज इन द एनिमल सेल। तो ये स्मॉल है, लिक्विड फिल्ड है, स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टोरेज करते हैं किसी ना किसी मटेरियल का, और एक तरीके से इंटरनल प्रेशर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। सो ये वैक्यूल्स प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, लेकिन एनिमल्स में जो है बहुत ही छोटे साइज के हैं, स्मॉल साइज के प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ऑर्गेनल्स वर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। और इस तरीके से हमारा वीडियो खत्म होता है, एंड थैंक यू वेरी मच।